চাষি ভাই আন্ধার রাইতে কাঁপতে তারে দৌড়ে শান সন্দের ধীর শান সন্দে ওই কাঁপতে তাতে সন্দে সন্দের ধীর শান সন্দে ওই কাঁপতে তাতে সন্দে ও চাষি ভাই মাটির বুকে চাইপা ধরো লাঙ্গল খান ও চাষি ভাই মাটির বুকে চাইপা ধরো লাঙ্গল খান আরে ও চাষি ভাই আন্ধার রাইতে কাঁপতে তারে দৌড়ে শান গাড়িটা কি করছে? গাড়িটা ওখানে কি করছে? ওই কাঁপতে তাতে গাড়িটাকে বলতে পারিস না, গাড়িটা নেই এখানে। ওই কাঁপতে তাতে সন্দে জমি তোমার কাইরা নিবে দালালো সরকার আর জমি তোমার কাইরা নিবে দালালো সরকার তোমার মুখের গেরস কাইরা নিবে মুখের গেরস কাইরা নিবে সব ঘর মাদার আর ভাউটা দিয়া কাইরা নিবে তোমার সাধের জমি খানো চাষি ভাই আন্ধার রাইতে দৌড়ে শান সন্দের দের শান সন্দে ওই কাছে তাতে সন্দের দের শান সন্দে ওই কাছে তাতে সন্দে ও চাষি ভাই মাটির বুকে চাইপা ধরো লাঙ্গল খান আরে চাষি ভাই আন্ধার রাইতে কাছে তারে দৌড়ে শান সন্দের দের শান সন্দে ওই কাছে তাতে সন্দে সন্দের দের শান সন্দে ওই কাছে তাতে সন্দে ভিটা মাটি হারাইয়া সব ওই বাসর বহারা ভিটা মাটি হারাইয়া সব ওই বাসর বহারা সমাজটারে পাল্টাইয়া দাও সমাজটারে পাল্টাইয়া দাও দুনিয়াটা দাও নারাম আরে ঘুমের ঠিকা জায়গা তো বাঁচাও তোমার জমি খান ও চাষি ভাই আন্ধারে রাইতে দৌড়ে শান সন্দের দের শান সন্দে ওই কাঁপতে তাতে সন্দে সন্দের দের শান সন্দে ওই কাঁপতে তাতে সন্দে সন্দের দের শান সন্দে ওই কাঁপতে তাতে সন্দে ও চাষি ভাই মাটির বুকে চাইপা ধরো লাঙ্গল খান আরে ও চাষি ভাই আন্ধার রাইতে কাঁপতে তাতে দৌড়ে শান সন্দের দের শান সন্দে ওই কাঁপতে তাতে সন্দে সন্দের দের শান সন্দে ওই কাঁপতে তাতে সন্দে সন্দের দের শান সন্দে ওই কাঁপতে তাতে সন্দে জয় কিষান জয় জওয়ান চালু কিন্তু আজকের পশ্চিমবঙ্গ কৃষক মজুর মহাপঞ্চায়েতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কৃষক নেতারা এসছেন যারা দিল্লির আন্দোলনে সেখানে আজকে 105 দিন আছেন। আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন তারা যদি একটু বসে পড়েন তাহলে এই মহাপঞ্চায়েতটা সঞ্চালন করতে সুবিধা হবে। সময় খুব কম, আমাদের 5:30টার মধ্যে মাঠ ছাড়তে হবে। সবচেয়ে প্রথমে আমি অমল হালদারকে অনুরোধ করছি তার সকলকে স্বাগত করার সম্বোধন করছি। অমলদা। আমাদের কংগ্রেস কোঅর্ডিনেটর এবং মঞ্চে উপস্থিত আমাদের কৃষক আন্দোলনের বীর যোদ্ধারা যারা দিল্লিতে বিরাট লড়াই করছেন এবং এই লড়াইয়ের প্রভাব পড়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গেও। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে ধর্মঘট পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে ধর্মঘট, রাস্তা অবরোধ হয়েছে, রেল লাইন অবরোধ হয়েছে। যেমন যেমন সংযুক্ত মোর্চা আমাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে, ঠিক সেই রকমই আমরা লড়াই করেছি গোটা পশ্চিমবঙ্গে। আরো লড়াই করতে হবে, যেমন করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ওদিকে রাজস্থান থেকে শুরু করে উত্তর ভারতের একটার পর একটা রাজ্যের মানুষ ভেঙে পড়েছে। যে লড়াই করছেন
আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসী কৃষক সমস্ত স্তরের মানুষকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে সবাই উপস্থিত শ্রদ্ধেয় বলবিন্দর সিং রাজওয়াল, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কমরেড দেবেন্দ্র যাদব, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কমরেড হান্নান মোল্লা। আজকে সবাই শ্রদ্ধা জানাচ্ছি গুরুনাম সিং দাউদুনি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বেদা ফাতেকার, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কমরেড অতুল কুমার রঞ্জন, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি রাজারাম সিং, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সত্যানারায়ণ, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ডক্টর সুনীলম, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ডক্টর সত্যরাম সিং আঞ্জেলা, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি হিমাংশু তিওয়ারি। আজকে যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের প্রত্যেককে আমরা আইকেসিসির পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি, অভিবাদন জানাচ্ছি। যারা লড়াইয়ের মানুষ, যারা আজকে এখানে উপস্থিত, তাদের বক্তৃতাই আমরা শুনব। আমরা পশ্চিমবঙ্গে অনেক বড় বড় সমাবেশ করেছি, সেখানে আমাদের কথা বলেছি। আমাদের আইকেসিসি সমস্ত সংগঠন আজকে এখানে উপস্থিত আছে। আমরা কোনো দীর্ঘ বক্তৃতা আমরা করব না, শুধু একটা কথাই বলি যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা আমরা খুব কষ্টে আছি। এখানেও এমএসপি পাওয়া যায় না। এখানে কার্যত ধান খোড়েদের কাছে 1200-1300 টাকায় বিক্রি করতে হয়। খুব কষ্টের মধ্যে আছে কৃষক। ইতিমধ্যে 227 জন কৃষক আত্মহত্যা করে মারা গেছে। যন্ত্রণা বাট যে লড়াই শুরু করেছে গোটা ভারতবর্ষের কৃষক, সেই লড়াইয়ের পাশে আমরাও আছি। এই কথা বলে, এই শপথ দিয়ে আগামী দিনে লড়াই আরো জোরদার হবে এই কথা বলে আমাদের সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার নেতৃত্ব যারা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছে তাদেরকে আরেকবার অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা এখানেই শেষ করছি। सबसे प्रथम जरा एखाने दाड़िए आছেন তাদের বলছি পেছনে जो लोग यहाँ खड़े हैं उन्हें अनुरोध है हाथ जोड़ के आप पीछे बैठ जाइए। मीडिया टीवी कवरेज नहीं कर पा रही है, प्लीज बैठ जाइए, पीछे खड़े हो जाइए पीछे, लेकिन टीवी कैमरा के सामने ना आइए। मेधा जी आप सभा को विलंबित कर रही है, ऊपर आ जाइए जी। अब मैं कार्तिक पाल जी को 2 शब्द कहने के लिए अनुरोध करता हूँ। আর কোথায় যাবে এগিয়ে? ভারতবর্ষের এই মুহূর্তে সব থেকে যেটা চর্চিত বিষয় সেটা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ এবং দিল্লির বুকে 3টি বর্ডার বিভিন্ন জায়গাতে লাগাতার প্রায় 101 দিন হলো, 4 দিন, প্রায় 250 মতো কৃষক, তার বেশি কৃষক মারা গিয়েছে। তার যে আন্দোলন, সারা দেশে এই আন্দোলনটা কিন্তু যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তার এক একের নাম বলবে আপনাদের কাছে, সেই সমস্ত নেতৃত্ব যারা আজকে পশ্চিমবাংলা কৃষক শ্রমিক পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েতে উপস্থিত হয়েছেন, সেই সমস্ত নেতৃত্বকে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং আমরা চাই যাতে পশ্চিমবাংলার বুকে বিজেপি সরকার বা বিজেপি একটাও যাতে ভোট না পায়। পশ্চিমবাংলার সমস্ত কৃষক যাতে দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যাতে সকলে ভোট দেয় এবং এখানে তারা ভোট দেবেন সেটা কোনো চর্চা হবে না। শুধু ভোট দেবেন না সেটা মূল চর্চিত। সেই ধরনের একটা বড় বার্তা নিয়ে ওরা এসছেন। পশ্চিমবঙ্গে 294টা যে কেন্দ্র, সেখানে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্যে যে 23টা কৃষক সংগঠন আসছে তারা এটা করবে। তাই যারা এই কাজের জন্য পশ্চিমবাংলা থেকে এখানে এসছেন তাদেরকে আমাদের অভিনন্দন। সমস্ত সময়ের মানুষ যারা একটু দেরি হয়েছে তার জন্য চলে যাবেন না, এখনো কিছু মানুষ বাইরে আছে, সবার সান্ত্বনার কাজ করবেন। এখানে অমিত সাহা, হিন্দি, পাঞ্জাব, বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ হচ্ছেন। মেধা বাচ্চা উপরে আসার জন্য অনুরোধ করছি।
আমরা সবাই এখন কাজ চালাবো। আপনাদের আবারও অনুরোধ করছি একটু এইখানে ফাঁকা জায়গায় বসে পড়ুন, আপনার জন্য বসার ব্যবস্থা আছে। সকলকে অভিনন্দন, যাতে আমাদের এই মহাপঞ্চায়েত ভালো করে চলতে পারে, সময় মতো চলতে পারে, সেইটা আমাদের রইল, আপনার সহযোগিতা করবেন। এই ক্যামেরায় আসছে রে বাবু। सबसे पहले मैं हमारे सम्मानित साथी सबके दादा, सबके पुराने किसान नेता बलबीर राजेवाल जी को अनुरोध करता हूं संबोधित करने के लिए। सभा के समय मैंने जैसे पहले शुरू में बताया 1.5 से पौने 2 घंटा है, तो हमें मजबूर होकर साथियों को 5-5 मिनट का टाइम लिमिट लगाना होगा। मैं नॉर्मली को नहीं चाहता, लेकिन आज मजबूरी है। बुमटा बलबीर जी, राजेवाल जी, जय श्री राम, जय श्री राम, बोले जय श्री राम। कलकत्ता के बहनों भाइयों, आज आप संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो बंगाल के इलेक्शन में हम एक नई किस्म की कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। आप सबको मालूम है, सरकार ने 3 कानून 5 जून को पिछले साल, जब कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, 3 ऑर्डिनेंस जारी करके इस देश में किसानों के अंदर एक हलचल मचा दी। उसके बाद जब ये कानून बनने के लिए पार्लियामेंट में पेश हुए, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था। जबकि ये कानून है कि कोई एक भी मेंबर खड़ा होके वोटिंग के लिए रिक्वेस्ट करे तो राज्यसभा के चेयरमैन के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसे वोटिंग करवानी पड़ती है। इसके बावजूद के 3 मेंबर्स ने अपनी सीट्स पे खड़े होके वोटिंग करवाने के लिए मांग की। कुछ मेंबर्स वेल में जाके शोर भी मचा रहे थे, लेकिन 3 मेंबर अपनी सीट से मांग कर रहे थे वोटिंग करवाने की। चेयरमैन साहब ने अलाउ नहीं किया और धक्केशाही से वॉइस वोट से बहुमत ना होते हुए भी ये कानून पास करवा लिए। ये कानून पास होने से पंजाब के लोगों को लगा कि अब एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेटाइजेशन हो रही है, कॉर्पोरेट हाउसेस के पास कृषि देने की तैयारी हो गई। इसका विरोध शुरू हुआ, सभी किसान संगठन इकट्ठा हुए। हम 2.5-3 महीने रेलवे लाइंस पे रेलवे ट्रैफिक रोक के बैठे रहे, लेकिन मोदी सरकार उसने जब परवाह नहीं की तो हमने तय किया कि 26 और 27 नवंबर को एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में दिल्ली में की जाए। लेकिन मोदी सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी। जब हम दिल्ली की तरफ बढ़े, उस वक्त तक हरियाणा भी तैयार हो चुका था। सरदार गुरनाम सिंह ने 2-3 ऐसे प्रोग्राम दिए जिससे सारे हरियाणा में हलचल मच गई।
तो जब हम दिल्ली की तरफ आ रहे थे, पुलिस ने बहुत जगह रोकने की कोशिश की, हमें हमारे बैरिकेड लगा के हमारे ऊपर पानी की बौछारें और टीयर गैस शेल फेंकने की सरकार ने भरपूर कोशिश की, लेकिन किसानों को रोक नहीं सकी पुलिस। दिल्ली बॉर्डर पे आके एक बहुत बड़ा बैरिकेड लगा दिया गया, तो हम वहीं बैठ गए। धीरे धीरे 4-5 दिन में गाजीपुर बॉर्डर में भी किसानों ने आके, यूपी के किसानों ने आके, उत्तराखंड के किसानों ने आके बॉर्डर को बंद कर दिया। टिकरी बॉर्डर पे भी किसानों ने बंद कर दिया, शाहजहांपुर में बंद कर दिया, पलवल में मध्य प्रदेश के किसानों ने बंद कर दिया, दिल्ली के 5 बड़े रास्ते घेर के किसानों ने बंद कर दिए। तो उसके बाद सरकार ने बातचीत शुरू की। मुझे अफसोस होता है कि सरकार, जितना बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है, सरकार इतना झूठ कभी नहीं बोला करती। पहली 3-4 मीटिंग्स में क्लॉज बाय क्लॉज बहस हो गई। सरकार को उन कानूनों की वैधता के बारे में सारा सब कुछ कहा गया। असलियत यह है कि कृषि राज्यों का विषय है। हमारे संविधान में 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कृषि राज्यों का विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखल नहीं दे सकती। और कृषि की मार्केटिंग वो भी राज्यों का विषय है। लेकिन इनके मंत्री कहते हैं कि हमने कंकरेंट लिस्ट से 33 नंबर आइटम पे ये कानून बना दिए। हमने सरकार के मंत्रियों को कहा कि ये 33 नंबर पे भी आप कानून नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें फूड स्टफ लिखा है। आपने व्यापार के लिए ये कानून बनाए हैं, किसान के भले के लिए नहीं बनाए। फूड स्टफ हम पैदा नहीं करते, हम फूड ग्रेन पैदा करते हैं। गेहूं फूड ग्रेन होती है, आटा फूड स्टफ है। हम पैडी पैदा करते हैं, वो फूड ग्रेन है, चावल फूड स्टफ है। तो इसलिए आप ये भी नहीं, इसमें दखल इस तरह से भी नहीं दे सकते। लेकिन सरकार ने जिद पकड़ी और पीछे हटने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे सरकार इस बात पे आ गई कि चलो इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। तो आज असलियत ये है कि सरकार ये मानती है कि ये कानून गलत है, लेकिन वो कहते हैं कोई ना कोई रास्ता निकालो जिससे हमारी भी इज्जत बच जाए, आपका भी काम हो जाए। सरकार की इज्जत बचाने का काम लोगों का नहीं होता। सरकार को खुद चाहिए कोई ऐसा काम ना करे जिससे सरकार की इज्जत दांव पे लगे। तो मोदी सरकार ने एक्चुअली कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए ये कानून बनाए, तो फिर शोर बड़ा मचाया। मोदी जी खुद कहते हैं, देखो जी हमने तो ये कानून किसानों के भले के लिए बनाए। हमने कहा भी किसी किसान ने मांग की या कभी किसानों की कोई राय ली गई? कोई नहीं। फिर वो कहते हैं कि हमने 1 नेशन 1 मार्केट दे दी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब मैंने ये यूनियन का काम 1971 में शुरू किया, उस वक्त जोनल रिस्ट्रिक्शन थी। पंजाब के किसान अपनी फसल हरियाणा में नहीं ले जा सकते थे, हरियाणा वाले अपने साथ की स्टेट में नहीं ले जा सकते थे। हमने एजुकेशन किया, 1450 किसान 40 दिन जेल यात्रा करके आए। उन्हीं दिनों हमने एक हाईकोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिट डाल दी
जिसका फैसला 1976 में आ गया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वो किसान पे ऐसी कोई पाबंदी लगाए। किसान की अपनी मर्जी है, वो जब चाहे, जितनी चाहे, जहां चाहे अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बेच सकता है और आप इसे स्टॉकिस्टी नहीं कह सकते। हमने सरकार के मंत्रियों से पूछा कि 1976 के बाद है कोई कानून क्या जिससे कोई पाबंदी हो? कोई नहीं। बिहार का धान पंजाब में आके बिकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और यूपी का धान पंजाब में बिकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पंजाब के लोग जो छोटे छोटे किसान हैं, एक छोटा टेम्पो भर के दिल्ली सब्जी मंडी में अपनी सब्जी बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। और जम्मू कश्मीर हिमाचल का सेब सारे देश में बिकता है, कोई पाबंदी नहीं। महाराष्ट्र का प्याज, केला, संतरा सारे देश में बिकता है, कोई पाबंदी नहीं। तो ये कौन सा नया काम किया है सरकार ने? कोई जवाब नहीं सरकार के पास। फिर वो कहते हैं कि हमने बिचौलिए से आपका छुटकारा कर दिया। हमने पूछा पहले इसकी डेफिनेशन दो, आप बिचौलिया किसको कहते हैं? हमारा पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन सिस्टम है। हम जाते हैं मंडी में ट्रॉली भर के, आड़ती उसको ट्रॉली खाली करवाता है, सफाई करवाता है, भाव लगवाता है, खरीद एजेंसी से बोरियों में भर के उसे डिलीवर करता है और उसकी कीमत क्लेम करके किसान को देता है। इस बार 1925 रुपए गेहूं की एमएसपी है, वो 1925 का बिल बना के 1925 ही किसान को देता है। अगर तो वो 1500 रुपए से 1925 क्लेम करे फिर तो बिचौलिया हुआ। तो हमने कहा दरअसल सरकार को बिचौलियों की इतनी जरूरत है कि के बगैर वो कोई सौदा ही नहीं करते, चाहे डिफेंस का हो, अरे देखिए कौन, चाहे रेलवे का हो, चाहे कुछ बेचना हो, कोई भी सरकार का कोई भी काम करना हो, सरकार ने बिचौलिए रखे हुए हैं। इसलिए सरकार के मुंह में चढ़ गया बिचौलिया शब्द। हमारा जो आड़ती है वो हमें एक सर्विस देता है और उसके बदले कमीशन लेता है। ही इज ए सर्विस प्रोवाइडर, वो बिचौलिया नहीं है। तो ये सारी बातें हमने सरकार की गलत साबित की, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तो आज हालत ऐसी है कि सब कुछ मान के भी सरकार ये कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि इतिहास में कोई ऐसी मिसाल नहीं, जब कोई कानून बन जाए उसको वापस लेने में या कोई अमेंडमेंट करने में 20-50 साल लग जाते हैं। लेकिन ये तो कानून अभी बने और फौरन विरोध हो गया। अब उनको लगता है इसमें हमारी तौहीन है। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए, ये जैसे कानून बनाए गए हैं उसमें बिल्कुल अनरेगुलेटेड मार्केट बनाने के लिए जो हमारी एक कानून के तहत रेगुलेटेड मार्केट है उसको तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। कहा गया है कि जिसने फसल की खरीदो फरोख्त का काम करना है उसे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो आधार कार्ड से खरीद सकता है। हमने पूछा, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं, वहाँ 200 करोड़ का घपला हो गया इसी बात में। किसानों से फसल खरीद ली, अब खरीदार मिलता नहीं कहाँ है, और किसान पे ये भी पाबंदी लगा देगी अगर वो पैसे ना दे तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। सिर्फ एक कंप्लेंट एसडीएम के पास करेंगे, एसडीएम एक समझौता करवाने के लिए रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा, और अगर समझौता नहीं होता तो मैक्सिमम किसान
डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर जिसको आप बोलते हैं उसके पास जाएगा और कलेक्टर भी यही काम करेगा। तो व्यापारी को कुछ भी कहने का जो हक था, हम पैसे ना दे कोर्ट में चले जाया करते थे, वो भी इन्होंने छीन लिया। इतने लैकुना कानून में है कि ये कानून टोटली कॉर्पोरेट को बेनिफिट देने के लिए हो गया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इस तरह से खत्म कर दिया कि अब से पहले जब कोई महंगाई होती थी, सरकार को अधिकार था महंगाई रोकने के लिए स्टॉकिस्ट के यहाँ रेड कर सकते थे। अगर गलत बात है तो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाता था, लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि कोई स्टॉक लिमिट नहीं। अगर महंगाई हो भी जाए तो अगर वो पिछले 5 साल की एवरेज 100% से ज्यादा होगी तब सोचेंगे स्टॉकिस्ट को स्टॉक चेक करने की। फिर भी ये कह दिया कि अगर स्टॉक चेक करना है तो देखेंगे कि ये उससे उसका कोई बिजनेस प्रभावित तो नहीं होता, कहीं और उसने सौदा किया है तो वो उसका सौदा तो नहीं रुक जाएगा। वो तो कह देंगे हमने सौदा कर रखा है। किसी प्रोसेसिंग हाउस ने ज्यादा स्टॉक रखा है तो देखेंगे उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी तो प्रभावित नहीं होती। एक तरह से ऐसा काम किया कि खुली छुट्टी दे दी कॉर्पोरेट हाउसेस को। होगा क्या, पूरा सारा अनाज अपने गोदामों में भर लेंगे और आम आदमी पीछे पीछे अपनी रोटी के लिए उनके पीछे भागेगा, वो अपने दामों पे बेचेंगे। और एमएसपी, प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। मुझे बताए, हमने पूछा कि पंजाब और हरियाणा के बगैर किसी स्टेट में एमएसपी लागू होती है? कहीं भी नहीं। तो ये कैसी एमएसपी है? 900 रुपए में धान बिहार में बिकता है, रेट है 1888 रुपए। वहां से आके पंजाब में व्यापारी बेच लेता है 1888 पे। किसान की कैपेसिटी नहीं, वो वहां से बिहार से पंजाब लाके बेच सके। तो ये कैसा कानून है, कैसी एमएसपी सिस्टम है? जब हमने कहा कि सारे देश में ऐसी ही मंडियां जैसे पंजाब और हरियाणा की हैं, 48,000 मंडियां बना दो ताकि सबको एमएसपी मिले। सरकार को ये मंजूर नहीं। तो जो पहले बना हुआ है, जो सदियों से एक बढ़िया सिस्टम बना हुआ है, उसको तोड़ने की चिंता ज्यादा है। क्योंकि अंबानी अडानी मोदी के खास ब्लू आइज बॉयज है, उसके चहेते हैं। इस देश का तेल का सेक्टर सारा अंबानी के पास है। ओएनजीसी जो सरकारी कंपनी है, जो अब तक मुनाफे में रही, अब वो घाटे में क्यों है? क्योंकि सारा जो अंबानी की रिफाइनरी में है उसमें तेल रिफाइन होता है। और कम्युनिकेशन में बीएसएनएल से लाइसेंस लेके बीएसएनएल कोई खा गया अंबानी, अब जियो सबसे ऊपर है। इसी तरह जब ये जो डिफेंस का आज तक हमारे आर्मी के इंजीनियर ये हथियार वगैरह बनाने का काम करते थे, धक्के से ये भी काम अंबानी को दे दिया, कोल सेक्टर अडानी को दे दिया, रेलवे अडानी को, हवाई अड्डे अडानी को, अब एग्रीकल्चर सेक्टर भी अडानी को। और असलियत ये है कि इतने बड़े स्केल पे प्राइवेटाइजेशन की तरफ, कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ मोदी सरकार बढ़ रही है। इन 3 सालों में कुछ भी नहीं बचेगा। हर चीज, हर अदारा इस देश का 100 से ज्यादा पीएसयू इसी साल प्राइवेट अदारों को बेच दी जाएंगे। अगर सब कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस को बेचना है तो इसका मतलब क्या है? देश फिर से गुलाम हो जाएगा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आपका कलकत्ता उसका बेस रहा,
यहाँ से सारा देश गुलाम बना लिया। और अगर ऐसे ही सब कुछ बेचते रहे कॉर्पोरेट्स को और सब इतनी लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी और इतनी लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे इतने बड़े पैमाने पे महंगाई होगी, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा आंदोलन इसी बात पे है। और मैं यहाँ बंगाल के भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न यूपी और राजस्थान का कुछ हिस्सा, वहाँ तो ऐसी हालत है कि सोसाइटी का हर वर्ग इस आंदोलन को अपना आंदोलन समझता है और हर कोई वहाँ आके अपनी हाजिरी लगवा रहा है। अब देश के बाकी कोने कोने में हम इस आंदोलन को लेके जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को सिर्फ वोट की राजनीति आती है। इसीलिए हमने तय किया कि हम भी इसे वोट की चोट से हराएंगे। और यहाँ 5 राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, हम हर जगह जा रहे हैं। हम मांग करेंगे सभी देशवासियों से कि मोदी को वोट ना दो, किसी को भी दे दो ताकि देश बचे। हमारा आपसे अनुरोध है, हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट के लिए नहीं आए। हम आए हैं किसान की सपोर्ट के लिए, आम आदमी की सपोर्ट के लिए। हमें चाहिए आपकी सपोर्ट, हमें चाहिए आपका वोट जो मोदी को हरा दे। सिर्फ मोदी को हराने के लिए वोट चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज शुरुआत कलकत्ता से हो रही है। जिस हिसाब से आपने एक बड़ा जुलूस निकाल के इसकी शुरुआत की है, तो मैं समझता हूँ अगले दिनों में ये एक वेव बनेगी जो मोदी की जड़ों में बैठ जाएगी और उसको चिंता ऐसी होगी कि मोदी की पार्टी का, बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बंगाल के वोटर इस बात को समझेंगे, क्योंकि बंगाल एक बात और कह के मैं समाप्त करूँगा। ये देश आजाद हुआ, इस देश में गांधी जी को छोड़ दो, बाकी गुजरातियों की कोई कुर्बानी नहीं। इस देश में कुर्बानी है तो बंगाल और पंजाब की है। देश का बंटवारा हुआ, आपके बंगाली जो बांग्लादेश गए, जो ईस्ट पाकिस्तान था, या वहां से यहाँ आए, हमारी काट कटाई आपस में हुई। पंजाब से पाकिस्तान के पंजाब में गए हमारे यहाँ भाई, मुसलमान भाई, और वहां से हमारे लोग इधर आए। लाखों की संख्या में हमने एक दूसरे को काट मारा और इसका सेक किसी स्टेट को नहीं लगा, ऐसा सेक किसी स्टेट को नहीं लगा। अगर कुर्बानियों की और बात करें, 95% देश में जो लोग फांसी चढ़े वो पंजाबी थे, और जो लोग काले पानी की सजा काट के आए, 94% काले पानी की सजा के लिए लोग गए पंजाब से, या फिर कोई बंगाली गए। मुझे बताइए कोई गुजराती एक भी था? ये व्यापारी लोग हैं भाई, ये व्यापारी लोग हैं गुजरात वाले। अब देश को बेच रहे हैं। जितने लोग इस देश का, बैंकों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा लेके भागे, सभी गुजराती हैं। छोटी मोटी चोरी करके नहीं भागते, हजारों करोड़ की चोरी करके भागते हैं ये लोग। तो इसलिए अब समय आ गया है कि सारे देशवासी इन लोगों की फितरत समझे, इन लोगों के अगले एजेंडे को समझे और एकजुट होके एक बार मोदी को सबक सिखाए और इससे पीछा छुड़ाएं देश का, वरना ये देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। ये कम्युनलिज्म में विश्वास रखते हैं, ये कॉर्पोरेटाइजेशन में विश्वास रखते हैं, प्राइवेटाइजेशन में विश्वास रखते हैं, जो देश के लिए नुकसानदेह ही नहीं, सुसाइडल है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, हम पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ के
सभी किसान भाइयों की तरफ से अपने बंगाली भाइयों के पास ये रिक्वेस्ट लेके आए हैं। हम भाई हैं आपस में, भाई भाई की रिक्वेस्ट को कभी नहीं ठुकराता। हमारी एक कल्चर है, हमारी इंडियन की एक कल्चर है। और खास तौर पे जब कोई इस देश पे गंदी निगाह रखे, देश को गुलाम करने की तरफ लेके जाए, फिर तो ये लोग उसको बख्शते नहीं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों पे। ये शुरुआत हो रही है एक बड़े आंदोलन की, ये वोटों तक सीमित नहीं। इसके बाद हम सभी इनके एमपीज को भी देखेंगे कहां तक वो बीजेपी के साथ रहे खड़ते हैं। हमारी हमसे वोट लेके जो हमारे खिलाफ पार्लियामेंट में वोट करते हैं उनको एमपी रहने का कोई अधिकार नहीं। तो इसलिए आप सबसे आखिर में यही निवेदन है बंगाल के लोगों से, यहाँ से शुरुआत हो जानी चाहिए। यहाँ से मोदी की छुट्टी होनी चाहिए, तय होना चाहिए। मोदी को वोट नहीं मिलना चाहिए। आप किसी को भी काले पेड़ को वोट दे दो, मोदी को वोट मत देना। यही आपसे नॉर्थ के भाइयों की रिक्वेस्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पर जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद। আপনারা হাততালি দিচ্ছেন না কেন? হাত ভালো করে হাততালি দিন। এরপরের বক্তা যোগেন্দ্র যাদব। किसान एकता। उधर से आवाज नहीं आई। इधर वाले साथी वो पीछे खड़े क्या कर रहे हैं? इधर आओ ना, आवाज सुनाई दे कस के। किसान एकता, किसान एकता। दोस्तों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए है कि आज 12 मार्च के दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। वो दांडी मार्च जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। आज उसी 12 मार्च को इस देश का ऐतिहासिक किसान आंदोलन भी, इसमें जुड़े हुए किसान, किसानों के परिवार और किसानों के हितैषी मिलके ऐसी एक शुरुआत कर रहे हैं। पंजाबी में बोड़ी बोलते हो ना आप इसे, शुरुआत, बिल्कुल एक शुरुआत कर रहे हैं। याद रखिए, दांडी मार्च में कोई लाखों लोग नहीं गए थे, कुछ सैकड़ों लोग ही थे वहां तो, जिन्होंने सिर्फ नमक उठा के और अंग्रेजी राज को हिला दिया था। आज जो कलकत्ता में शुरुआत हुई है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के राज को नहीं, उस राज को कठपुतली की तरह नचाने वाले जो कॉरपोरेट है उन सबको चुनौती देगा, उनकी बुनियाद को हिलाने की शुरुआत करेगा। आज ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि पंजाब, याद रखिए अंग्रेजों के जमाने का जो पंजाब था उसमें हरियाणा भी शामिल था, उसमें हिमाचल भी शामिल था, कि पंजाब और बंगाल का संगम जिसने इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दी, वही संगम आज फिर हम इस मंच पे देख रहे हैं, यहाँ कोलकाता में देख रहे हैं। इसलिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक अपील लेके आए बंगाल की जनता से, बंगाल के वोटर से, बस एक अपील करने आए हैं, बीजेपी को सजा दो, बीजेपी को शिक्षा दो, बीजेपी को ऐसी सीख दो जो बीजेपी भी ना भूले और आगे से कोई गद्दी कुर्सी पे बैठे तो वो भी ना भूले इस बात को कि किसानों से पंगा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने हिमाकत की है वो 3 कानून लाने की, जिसके बारे में हमारे सीनियर नेता
बलबीर सिंह राजेवाल जी बोल चुके हैं और मुझे नहीं लगता इस मंच से अब किसी को उस बातों को दोहराने की जरूरत है। वो 3 किसान विरोधी काले कानून लाने की हिमाकत जिस पार्टी ने की है उसको सजा दो। किसानों को गाली जिसने दी है, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दलाल, इसके दलाल, उसके दलाल, कमीशन एजेंट, किसानों को गाली देने वाले और बदनाम करने वालों को सजा दो। किसानों पे दमन करने वालों को सजा दो। इन्होंने आंसू गैस चलवाई, इन्होंने वाटर कैनन चलवाए और आज सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे इतना वायरिंग और कांटे लगा रखे हैं जितना हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी नहीं है, उतने इन्होंने लगा रखे हैं। किसान को दुश्मन बताने वालों को सजा दो। लोग पूछते हैं सजा देने के लिए चुनाव के टाइम आप क्यों आए हो? मैं कहता हूं इनको इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। बीजेपी से कहो, राजेवाल जी हमारे नेता कह कह के थक गए कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ही नहीं है ये कानून बनाने की। बीजेपी कहती है लेकिन हमारे पास संसद में 303 सीट है, हम तो बनाएंगे। इनसे कहो कि ये 3 कानून किसान विरोधी है, तुमने किस किसान से पूछ के बनाए? तो ये कहते हैं हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमने चुनाव जीता है, हमें पता है किसान के हित में क्या है। इनसे कहो कि 100 दिन से ज्यादा किसान बैठे हुए हैं सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, जरा उसे देख तो लो। ये कहते हैं हमें देखने की जरूरत नहीं, हम गुजरात में चुनाव जीत चुके हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की भाषा समझते हैं। इसलिए किसान ने कहा कि तुम सिर्फ चुनाव, वोट, सीट ये बात समझते हो तो आओ हम भी तुम्हें इसी भाषा में समझा दें। मजबूरी में हमें भाषा अपनानी पड़ी है। हमारी कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं, सिर्फ एक बात कहने आए हैं। इन्हें सच झूठ की भाषा समझ नहीं आती, नैतिकता की भाषा समझ नहीं आती, दया और इंसानियत की भाषा समझ नहीं आती, इनको सिर्फ वोट की भाषा समझ आती है। इसलिए हम वोट की चोट देने यहाँ पे आए हैं, और कोई हमारा मकसद नहीं है, और कोई पर्पस नहीं है। और मैं चाहता हूँ 2 तारीख को, 2 मई को जब चुनाव का परिणाम आए, जो आए, जो जीते, जो हारे, उस दिन शाम को हमारे टेलीविजन के साथी कह रहे हो ये किसान से पंगा लेना तो मोदी जी के लिए भारी पड़ गया। ये करना, ये संदेश देना आज बंगाल के किसान के हाथ में है। तो मैं आप सबके माध्यम से बंगाल के किसान को कहना चाहता हूं, हमने एक चिट्ठी बना के भेजी है बंगाल के किसान के लिए। वो चिट्ठी गांव गांव में पहुंचाना हमारे बस की तो बात नहीं है, लेकिन जिसको भी चिट्ठी मिले वो आगे पहुंचाए, वो कोने कोने तक पहुंचाए और बंगाल का किसान इनसे हर गांव में सवाल पूछे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसान के साथ पंगा लेने की? और अगर ये हो गया तो मैं नहीं जानता कौन पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी, लेकिन किसान जीतेगा इस देश में, यही हमें चाहिए। तो मिलके बोलिए किसान एकता। और जिन्हें इस चुनाव में किसान को जिताना है वो बोलिएगा, मैं कहूंगा लड़ेंगे, और जिसने किसान को जिताना है वो बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন কমরেড হান্নান মোল্লা। সাথী সঞ্চালক, মঞ্চে উপবিষ্ট ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শ্রদ্ধেয় কিষাণ নেতৃবৃন্দ এবং আজকের এই সভায় উপস্থিত আমার প্রিয় ভাই, বন্ধু, মা, বোনেরা,
আমি আজকে প্রথমেই আপনাদের এই সমাবেশে আসার জন্যে সারা ভারতবর্ষ থেকে যে কৃষক নেতারা আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে যে আবেদন নিয়ে এসছেন সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আসার জন্যে আমি আপনাদের সবাইকে পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা শুনেছেন আমি ওই যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো আবার বলার দরকার। যেটা প্রথম কথা বলার দরকার যে আজকে আমরা এই যে পঞ্চায়েত করছি, আজ কাল পরশু পশ্চিমবাংলায় হবে, বিহারে হয়েছে, উড়িষ্যায় হবে, বেঙ্গালুরু হবে 22 তারিখে, কর্ণাটকে, মহারাষ্ট্রে হয়েছে, আরও হবে। সমস্ত আমরা যারা এই আন্দোলন চালাচ্ছি দিল্লিতে বসে প্রায় 280 জন আমাদের সাথী শহীদ হয়ে গেছে, তাদের কথা স্মরণ রেখে আমরা এই আন্দোলনকে গোটা ভারতবর্ষে সংগঠিত করার যে কাজ, সেই কাজই আমরা দেখি। এটা আমাদের ভারত অভিযান, সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা। কারণ যা মোদী বারবার বলার চেষ্টা করেছে এটা পাঞ্জাবের আন্দোলন, হরিয়ানার আন্দোলন। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম পাঞ্জাবের আন্দোলন যদি হবে তাহলে বিহার বন কে করলো, মহারাষ্ট্র বন কে করলো, পাঞ্জাবের লোক কে করেছিল? এটা যদি পাঞ্জাবের শুধু আন্দোলন হবে তাহলে যে ভারতবর্ষে প্রায় 600 জায়গায় রেল রোকো হয়েছিল, শুধু কি পাঞ্জাবের লোক করেছিল না হরিয়ানার লোক করেছিল নাকি ভারতবর্ষের কিষাণ করেছিল? গোটা ভারতবর্ষে এই আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে। আন্দোলনের চরিত্রের পার্থক্য হয়, যারা ইতিহাস জানে তারা জানবে যে কৃষক আন্দোলন একই রকম গোটা ভারতবর্ষে গত 300 বছরে কখনো হয়। যখন তেভাগ আন্দোলন পশ্চিমবাংলায় হয়েছে অন্য রাজ্যের সমর্থন পাওয়া যায়, যখন তেলেঙ্গানার আন্দোলন অন্ধ্রে হয়েছে তখন সারা ভারতবর্ষের সমর্থন পাওয়া যায়, যখন অর্নিল আন্দোলন হয়েছে আদিবাসীদের গোটা ভারতবর্ষের সমর্থন পাওয়া গেছে। কিন্তু আন্দোলন যে রেটে সেই জায়গায় হয়েছে একই রেটে হয় না। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আন্দোলনে আঘাত কার ওপর প্রথম আসছে ও বিরোধ সেই রকম। এই 3টে কানুন, এই 3টে আইনের আঘাত প্রথমে আসছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, যেখানে এমএসপি, যেখানে মান্ডি আছে, মান্ডিতে একমাত্র এমএসপি মেলে, ভারতবর্ষের আর কোথাও এমএসপি মেলে না। রাজওয়ারজি বলে গেছে, মোদী বলছে এমএসপি ছিল, এমএসপি আছে, এমএসপি থাকবে। এর চেয়ে বড় মিথ্যে কথা আর নেই। উনি মিথ্যে পাড়ায় প্রতিযোগিতা করতে গেলে নোবেল প্রাইজ পাবে, মিথ্যে কথা বলছেন। এমএসপি যেটা আছে এটা খরচার চেয়ে কম, তা সত্ত্বেও যে এমএসপি আছে তাও ভারতবর্ষের 6% মানে মূল্য, বিক্রি মূল্য এমএসপিতে খরিদ করা হয়, 94% যে খরচ হয় এমএসপিতে খরিদ হয় না। তাহলে এমএসপির কি দাম আছে? কিন্তু সবাই না পায়। পশ্চিমবাংলায় মান্ডি নেই, পশ্চিমবাংলায় এমএসপি নেই, পশ্চিমবাংলায় 1868 টাকা ধানের দাম, পশ্চিমবাংলার কৃষক 1500 টাকার বেশি বিক্রি করতে পায় না। এত ভক্তি কারা? আলুর দাম পাচ্ছে না, আজকে ধর্ণা দিচ্ছে পশ্চিমবাংলার কৃষকরা, আলুর মিনিমাম সাপোর্ট তারা পাচ্ছে না। পাটের জন্য জুটের আন্দোলন হয় বারে বারে, কেসিআই পাট ঠিক দামে কেনে নাই, সব তো আছে। পশ্চিমবাংলার আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন কখনো দুর্বল না, লাগাতার এই আন্দোলন চলছে, আগামী দিনেও আন্দোলন চলবে। এই আন্দোলন গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন। এই আন্দোলন হচ্ছে এই 3টে আইন পাশ হলে ভারতবর্ষের কৃষকের মৃত্যু পরোয়ানা, এবং ভারতবর্ষের কৃষক নীল চাষিদের মতন নিজের জমিতে কৃতদাস হয়ে যাবে। আর আদানি আম্বানির মতন কয়েকটা বড় কোটিপতি তারা এই জমির মালিক হবে, তারা হবে সমস্ত কিছুর মালিক। তার উৎপাদন, তারপরে হচ্ছে তার প্রসেসিং, তারপরে হচ্ছে তার হোর্ডিং, তারপরে হচ্ছে তার ব্যবসা, এই সমস্ত হচ্ছে আস্তে আস্তে ওদের হাতে চলে যাবে, বড় বড় কর্পোরেটরা। কৃষক ধীরে ধীরে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হবে। কৃষকের এই মৃত্যু কৃষক কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে না। বারবার বলেছে যে তোমরা কেন, মোদী বলছে স্বীকার করছে না কেন? আরে মোদী তো বলেছে একটা টেলিফোনের দূরে আছে, তো একটা টেলিফোনের অপেক্ষায় আছে, 25 দিন হয়ে গেল টেলিফোন আর আছে। কে বলছে এ সমস্ত মিথ্যে কথা? তিনি বলেছিলেন যে আমাদের 15 লাখ করে টাকা আপনাদের দেবে প্রত্যেককে, যদি 15 টাকা আপনারা পেয়ে থাকেন তাহলে আমরা আন্দোলন থেকে সরে যাব। বলুন তো পেয়েছেন? উনি বলেছিলেন 2 কোটি করে চাকরি দেবো, 7 বছরে 14 কোটি, 14,000 চাকরি পাননি। বলেন আপনার পরিবারের কেউ চাকরি পেয়েছে?
পেয়েছে কেউ? এই হচ্ছে অবস্থা। আর বরং আজকে 10,000-এর মতন কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এই মানে এই রোগের পরে, প্যান্ডামিকের পরে। প্রায় 2 কোটির মতন লোক কাজ করছিল, তারা কাজ হারিয়েছে। তাহলে মোদির কথা বিশ্বাস করবে? মিথ্যে কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, এবং মানুষকে শুধু ধর্মের ধোঁয়া তুলে, ধর্মের অভাবের সৃষ্টি করে মানুষকে ভোট নিয়ে যায়। মানুষের সমস্যা নিয়ে এর কোনো চিন্তা নেই। এই জন্য আজ সব গোটা ভারতবর্ষে আন্দোলন করছে। আমরা বসে আছি এত অসুবিধার মধ্যে। প্রতি ঘন্টায় 2 জন কৃষক আত্মহত্যা করছে, আপনারা জানেন? প্রতি ঘন্টায়, প্রতিদিন 2,435 জন কৃষক কৃষি ছেড়ে অন্য বৃত্তিতে চলে যাচ্ছে, জানেন আপনারা? অন্নদাতা মরছে, 4 লাখ আপনাদের অন্নদাতা মারা গেছে। আমরা লোকের চোখে জল দেখিনি। আমরা কি বেঈমান নই যে আমার অন্নদাতা সে মরছে, আমার চোখে জল নেই? আমি কি মানুষ? আজ কৃষকের এই প্রশ্ন বোঝার চেষ্টা করছে যে আমরা এইভাবে করছি, সরকারের উচিত চলে। আজ পর্যন্ত যত সরকার ভারতবর্ষে হয়েছে, নরেন্দ্র মোদী সরকারের মতন কৃষকের বিরোধী, কৃষকের দুশ্মন, কৃষকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক সরকার 73 বছরে ভারতবর্ষে কোনোদিন হয়নি। সেই জন্যই তো কৃষক এই আন্দোলন গড়ে তুলেছে, লড়ছে, লড়ছে। 0 ডিগ্রিতে বসেছিল, জল বৃষ্টিতে বসেছিল, কিন্তু তারা হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন তারা ছেড়ে যায়নি। আমরা সেই জন্য চাই এই আন্দোলনকে প্রসারিত করতে হবে, এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে। আর যারা এই আন্দোলনের শত্রু, যারা কৃষকের জন্য এই কালা কানুন এনেছে, MSP আইন করছে না, তারা কৃষকের শত্রু। সেই শত্রুকে ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে, এছাড়া কৃষককে বাঁচানো যাবে না। এটাই হচ্ছে কৃষক আন্দোলন, আর কিছু না। আমরা বলেছি যারা কৃষকের দুশ্মন তাদের ভারতবর্ষের মাটি থেকে উৎখাত করে দেয়। এবং এর সাথে যোগেন্দ্র বলেছে যে আমরা জানি এরা শুধু ভোটের ভাষা বোঝে, সুতরাং এরা যদি জানে ভোট পাবে না, তবেই হয়তো আমাদের দাবি মানতে পারে, না হলে কিন্তু এরা আমাদের দাবি মানবে না। আমরা চাই এই দাবি যতক্ষণ না মানবে কৃষকরা যাবে না। কৃষকরা বলেছে, বসে মহিলা, হাজারে হাজার মহিলা কৃষক আছে পাঞ্জাবে, এসে বলেছে আমাদের পুরুষরা চাষ করতে গেলে আমরা এসে জায়গা ভরে দেবো, লাখ লাখ লোক বসে থাকবে, আমরা পিছিয়ে হবো না, আমরা না জিতে আমরা যাব না। এই হচ্ছে আমাদের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস এবং প্রতিজ্ঞা। সেই জন্য পশ্চিমবাংলার বুকেও যারা হচ্ছে কৃষকের দুশ্মন, তাদের আমাদের পরাজিত করতে হবে, বিতাড়িত করতে হবে। বিজেপি ধর্মের নামে, হিন্দু মুসলমানের নামে আমাদের ভাগ করার চেষ্টা করে, সেই বিভক্তকে দোষ করে। আমরা কৃষক, আমাদের একটাই পরিচয়, আমরা কৃষক। যার ধর্ম ভাষা যাই হোক না কেন, আমরা সবাই কিষাণ। কিষাণ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এই দেশের একতা, অখণ্ডতাকে রক্ষা করব। আমরা শুধু অন্নদাতা নই, আমরা ভোটদাতাও। এই কথাটাও আমরা দুশ্মনদের বুঝিয়ে দেবো। সেই জন্যই আজকে আমরা সারা দেশের কৃষক নেতাদের পক্ষ থেকে আপনাদের দ্বারে এসেছি। এই মিটিং চলবে, প্রচার চলবে, 29টা রাজ্যে এই মিটিং চলছে। সব শুধু এখন ভোট ঘোষণা হয়ে গেল, আমরা কি করবো? ভোট ঘোষণা হয়তো বাদ দিতে পারি না। 29টা রাজ্যে আমরা যাচ্ছি, 29টা রাজ্যেই আমরা এই প্রচার করব। একই প্রচার, এই 3 কালা কানুনের যারা জনক তাদের ভারতবর্ষের মাটি থেকে উৎখাত করো, এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই আজকে সভা। আপনারা নিশ্চয়ই পশ্চিমবাংলার মানুষ একে সমর্থন করবেন। এই আবেদন রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ। धन्यवाद धर्मेंद्र। अब आपके सामने अपना विचार रखेंगे गुरनाम सिंह जी। सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, साथियों, इस देश को आजाद कराने में बंगाल की बहुत कुर्बानियां रही है, बहुत अहम भूमिका रही है। बंगाल के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस देश को बिकने के लिए आजाद करवाया था? किसानी मुद्दे तो जो है सो है, लेकिन देश जा कहाँ रहा है? आज एक परिवार की आमदन 1 घंटे की 90 करोड़ और दूसरे आदमी की आमदन इसी देश में 1 घंटे में 9 रुपए नहीं है।
ये कौन सा संतुलन है, ये कौन से देश का निर्माण होगा। साथियों, इस देश के अंदर पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसान और उनके साथ जुड़े मजदूर कर्जे से दबके आत्महत्या करके बैंक वालों के परेशान किए, आत्महत्या करके मरने के लिए मजबूर कर दिए बैंकों ने। और उसी देश के अंदर आज 15 लाख करोड़ का एनपीए, यानी जितना टोटल खेती का कर्जा है उससे 2 गुना पैसा पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया, जो वापिस नहीं आ सकता। और इतने बड़े कर्जे के अंदर, इतने बड़े बेईमानी के अंदर एक भी पूंजीपति ने अब तक देश में आत्महत्या करी हो तो बता दो। एक भी पूंजीपति 15 लाख करोड़ के कर्जे में जेल में गया हो तो बता दो। साथियों, इस देश को आजाद कराने में पूंजीपतियों का कोई योगदान नहीं। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ हो तो बता दो। देश की आजादी की लड़ाई में एक भी पूंजीपति का बेटा जेल में गया हो तो बता दो। साथियों, ये देश जा कहाँ रहा है? आज पूरे देश के कारोबार कारपोरेट के हवाले किए जा रहे हैं, देश के चंद घरानों के हवाले किए जा रहे हैं। देश के बाजार में मॉल खा गए, देश की नौकरियां खत्म, देश के आधे छोटे उद्योग बैठ गए, देश के छोटे कारोबार बैठ गए, देश के बैंक बेच दिए, देश की छोटी कंपनियां, देश की कंपनियां बेच दी, देश की रेलें बेच दी, देश की सड़कें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी। अब तो हमें बेचना बाकी है, हमें भी बेच डालो, फिर जनता को बेचना बाकी है, उनको मार मार में खा लेंगे। ये खेती बची थी, ये खेती भी बेच दी, आपकी मजदूरी भी बेच दी। मजदूरी में जो कानून बने हुए थे मजदूरों के लिए, उनको भी तोड़ दिया गया। जो 8 घंटे का काम करवाने का कानून था, चाहे 12 घंटे करवाए। साथियों, हमारे पास 2 चीज है, एक हमारी फसल और दूसरा हमारी मजदूरी। आज हमारी फसल का 23 फसलों का भाव सरकार तय करती है, इसकी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़, लेकिन हमें मिल रहा है करीब 13 लाख करोड़। आज हमारी न्यूनतम मजदूरी, जो आप किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में, किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो, आज आपको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, न्यूनतम मजदूरी से भी 1/3 कम मिल रहा है आपको। बड़े पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज जिस देश को बंगाल वालों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां देके आजाद करवाया था, आज वो देश भुखमरी में दुनिया में 102वें स्थान पर है। आज आपका देश में जो बच्चे हैं, 45% बच्चे वो हैं जिनको हम खाना पूरा नहीं दे पाए। मेरी रिपोर्ट नहीं है, राष्ट्रीय अन्न सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। कौन सा देश बन गया ये, और इस देश को बचाने कौन आएगा? क्या इस देश को बिकने देना चाहिए? और अगर नहीं बिकने देना चाहिए तो फिर वो सरकार, देखिए ये वो सरकार है, उन लोगों की सरकार है जिन लोगों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं डाला है आरएसएस वालों ने। 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं लड़ाया इन लोगों ने, 60 साल तक। साथियों, आज उन लोगों के हाथ में देश का राज है, और जो इसको टुकड़े टुकड़े करके बेच रहे हैं, पूरा देश सेल पे लगा दिया है। आज इस देश को बचाने की जरूरत है। और ये जो आंदोलन चल रहा है ना,
ये किसानों ने तो शुरू किया है, ये केवल किसानों के लिए नहीं है, सारी जनता के लिए है। कानून ये बन गए हैं कि पूरे देश का भोजन चंद लोग खरीद के अपने गोदामों में कैद करेंगे और फिर पूरा देश उन चंद लोगों का ग्राहक होगा। हर खाने पीने की चीज उन चंद लोगों से खरीदनी पड़ेगी और जब उन चंद लोगों से खरीदनी पड़ेगी तो ये कंपनियां ये कभी लिहाज नहीं करती। इन कंपनियों को कोई मतलब नहीं है किसी के मरने से, किसी के जिंदा रहने से। इनका पैसा ही इनका भगवान होता है। आप देखिए 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी। 50 रुपए किलो दाल खरीद के 200 रुपए किलो बेची थी। बता रहे हैं अडानी जैसे लोगों ने 1 लाख करोड़ कमा लिया था ब्लैकमेल करके। दाल पिछले साल से ज्यादा थी उस साल में, नेट पे निकलवा के देख सकते हैं आप लोग। आलू 5 रुपए किलो में खरीद के 40 रुपए किलो बेचा है। प्याज 8 रुपए किलो खरीद के 80 रुपए किलो बेचा है। क्या हमारे देश में कोई कानून है कि कितने % मुनाफा लेगा, कितने गुना मुनाफा लेगा? और ये लूट के खा जाए कंपनियां। बस हम आपसे ये अनुरोध करने आए हैं कि हम तो जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब आपके हाथ में इनकी लगाम है। अब आपके हाथ में पावर है। 5 साल में एक बार ही तो मौका आता है। अगर आप पूरे देश की मदद, आप एक बार केवल बटन दबाना है आपको। अगर उस बटन दबाने से देश का भला हो सकता है तो इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है? और हम ये कहने नहीं आए कि किसको वोट देना है। हम ये कह रहे हैं जो बीजेपी को हरा सकता है, कोई हो जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट डाल दें, तो बीजेपी से जान छुड़वा लो। बस मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत से बोलने वाले हैं। बस मैं इतना सा अनुरोध करूंगा कि आज बंगाल की तरफ देश की नजरें हैं, बंगाल की तरफ देश की नजरें हैं। आज साथियों, आज आप पूरे देश का भला कर सकते हैं। आज आप पूरे देश के किसानों पर पड़ी लाठियां, पूरे देश के किसानों पर पड़े मुकदमे, पूरे देश के किसानों से हुई ज्यादतियों का बदला ले सकते हैं आप लोग। इसलिए आपसे अनुरोध करने आए हैं कि बस वैसे तो ईवीएम में भी घोटाला है, आप दबाओगे मतलब कहीं जाएगा कहां पता नहीं, ये भी नहीं पता। लेकिन आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग, हर देशवासी की जिम्मेवारी है। हम बंगाल से बेनती करेंगे कि जितना ज्यादा आप लोग काम कर सकते हो, कोई आदमी 1 वोट को प्रेरित कर सकता है, कोई आदमी साइकिल यात्रा निकाल सकता है, कोई आदमी पर्चे बांट सकता है, कोई आदमी किसी तरह से जनता को जागरूक कर सकता है, वो करे। कि ये बीजेपी जो है ये देश को बेचने वाली पार्टी है, देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, किसानों मजदूरों की, आम जनता की भक्षक पार्टी है। इस पार्टी को वोट ना दे, बाकी चाहे किसी को दे दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गुरनाम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मेधा पाटकर जी को अनुरोध करता हूं आपकी बात रखने के लिए। अब यहाँ जो हमारी बहनें पूरे रास्ता चल के आई है, उनकी तरफ से सुखबीर कौर जी कुछ नारे लगाएंगी। महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। 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 महिला शक्ति आई है, जीतेंगे भाई जीतेंगे। बंगाली पंजाबी जीतेंगे, बंगाली पंजाबी जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। बोले सोनिया सादा हक तेरा हक, सादा हक बोलो, सादा हक। काले कानून रद्द करो, काले
धन्यवाद क्यों बोले? आज बहुत सारे संगठनों के किसान मजदूर विविध व्यवसायों में जुड़े हुए बंगाल के मतदाता नागरिक भगिनी और बंधुओं और मंच पर बैठे हुए संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता कार्यकर्तागण, आप सब लोगों को एक जोरदार जिंदाबाद, जरा जोरदार जिंदाबाद करें। हमारी ताकत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। साथियों, आज बंगाल के चुनावी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हम जैसे गैर चुनावी राजनीति के आंदोलन जीवियों का यहाँ आना कईयों को बहुत ही संभ्रम में डाल गया होगा, लेकिन इस बंगाल की क्रांतिकारी भूमि, जहाँ बहुत सारे किसानों के, मजदूरों के अपनी भूमि, अपनी नदी, अपना पानी, अपना खनिज बचाने के लिए, अपना गांव बचाने के लिए चल रहे आंदोलन के हम लोग साथी रहे हैं, केवल गवाह नहीं। तो ऐसे बंगाल की भूमि पर जो कॉर्पोरेट्स को खुद बैठिए बनाकर पूरे देश को बेचने वाले आ रहे हैं, ऐसा जो पुकार नारा हो रहा है, इसको सुनते हुए हम लोगों को यहाँ पधारना पड़ा है। राजनीति का अर्थ केवल चुनावी राजनीति नहीं होता है, ये जानने वाले लोग यहाँ बैठे। चुनावी राजनीति में जबकि मूल्यहीनता छाई हुई है और चुनावी राजनीति जब चुन चुन के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी खरीदी बिक्री करने में लगती है, तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये निर्णय हुआ, निश्चय हुआ, संकल्प हुआ संयुक्त किसान मोर्चा का, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय। साथियों, एक पत्रकार ने पूछा कि अभी ही आप कैसे और कहां से पधारे? हम आसमान से तो नहीं टपके भाई। जब मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवराज सिंह चौहान जी की मोदी जी से जुड़े हुए सरकार ने हत्या की थी 6 किसानों की, तब सबसे पहले बना अखिल भारतीय किसान संघर्षों का समन्वय और 300 तक संगठन जुड़कर न केवल एमएसपी की मांग की, लेकिन संपूर्ण कर्ज मुक्ति की मांग और स्वामीनाथन आयोग की बात, जो हर राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में छाई हुई थी, लेकिन चुनने के बाद किसी ने उसकी दखल नहीं ली थी, तो उसकी याद नहीं दिलाई केवल। तो लोकसभा और राज्यसभा में 2 विधेयक पेश करते हुए हमने कहा कि किसान में खेत मजदूर भी आएगा, किसान में पशुपालक भी आएंगे, मछुआरे भी आएंगे, और इन तमाम लोग जो आज कर्जबाजारी हुए हैं वो आलसी है इसलिए नहीं, वो अकुशल है इसलिए नहीं, वो मेहनत कश है इसलिए, क्योंकि न मेहनत का दाम है न प्रकृति का दाम है। और अडानी अंबानी जैसे पूंजी और बाजारवादी पूंजी निवेशों का बस मुनाफा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन जरूरी था। और पंजाब और हरियाणा के वो आजादी आंदोलन की शहादत से प्रेरणा लेने वाले, वो गुरु गोविंद सिंह जी से, शहीद आजम से प्रेरणा लेने वाले जब आंदोलन में ही नहीं रेल ट्रैक पर उतर आए, अंबानी के मॉल, पेट्रोल पंप और जियो की सिम तक उन्होंने बंद किया, फेंक दिया, तब जाकर इस देश में एक नई आजादी की गूंज उठी है। और हमारा अखिल भारतीय समन्वय अब संयुक्त किसान मोर्चा 500 संगठनों का लेकर आज बंगाल की भूमि पर इसलिए आया है क्योंकि हम मानते हैं अब हमारा फर्ज बन गया है, हाथ हो चुकी है। अडानी और अंबानी जब रोज की कमाई करोड़ों की कर रहे हैं और हमारे यहाँ देश में हर रोज 3000 बालक कुपोषण से मर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद का आंकड़ा तो अभी भी नहीं आया है। ऐसी स्थिति में ये क्या करने जा रही है मोदी सरकार? ये बंगाल के अकाल के समय 20 लाखों की मौत के बाद
अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम बना था 1955 का, 5 मिनट या 2 मिनट भी नहीं हुए भाई, कोई भी घड़ी देखते रहो। तो ये वो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम भी बदलने की हिम्मत मोदी जी क्यों कर रहे हैं? ये क्यों निजी मंडियां खोल रहे हैं? ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, जो अनौपचारिक रूप से हमारे भी गांव में चलता आया, लेकिन अब ये क्यों ला रहे हैं उसे कानूनी दायरे में? और क्यों नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए इन 3 कानूनों में जिक्र नहीं है और उस पर कोई कानून बनाने की उनकी तैयारी नहीं है? बस बात केवल एक ही है कि चुनावी राजनीति में, चुनाव में चंदा इनको चाहिए जो ये कॉर्पोरेट देते हैं, किसान मजदूर नहीं दे सकते। इनको इस चंदे को चुनाव में भी सूचना के अधिकार के तहत नहीं लाना है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हिसाब में नहीं लाते हैं, पर इनके सही इलेक्टोरल बॉन्ड इन कंपनियों के साथ बने हुए हैं। इनका ये जो गठजोड़ है वो अडानी और अंबानी नहीं, सैकड़ों कंपनियों के साथ है। उसमें विदेश की मोन्सांटो और सिजेंटा जैसी कंपनियां भी है, उसमें वॉलमार्ट जैसी कंपनी भी है, और वहाँ वॉल स्ट्रीट को कब्जे में लेकर बैठे हुए यूके के नागरिक युवा साथी, तो आज हमारे देश में भी ऐसे युवा पैदा हुए हैं। मैं ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के युवाओं का सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि उन्होंने आज किसान आंदोलन के पक्ष में ये तमाम बातें हमारे सबके सामने लाई है। साथियों, ये 3 कानूनों को अगर चलने देंगे, जो इन्होंने लॉकडाउन में जनतंत्र को काटकर राज्य सरकार का जो अधिकार राज्य की सूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में है, उसको नजरअंदाज करके और सब राज्यों के अधिकारों को नहीं, संविधान को भी कुचलकर आगे बढ़ाए हैं, तो हम लोगों के देश में न खेती बचेगी, न खेती हर बचेगा, न आम गरीबों की राशन व्यवस्था जिससे अन्न सुरक्षा मिलती है नहीं बचेगी। ये तो अडानी को गोडाउन में सरकार ने खरीदा हुआ माल रखने के लिए भी अव्वा के सव्वा भाव देते रहे। इसके ऊपर ऑडिटर ने कहा है कि ये लूट हुई है। अब तो वो मंडी के अंदर जो छोटे छोटे व्यापारी छोटा मोटा भ्रष्टाचार करते हैं उससे नहीं संतुष्ट है, वो चाहते हैं बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अत्याचारी बनकर लाया जाए। अब अडानी और अंबानी जमीन लेने वाले हैं। ये बात समझकर पंजाब के ही नहीं, पूरे देश के किसान, ओडिशा के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल के आज लड़ने के लिए क्यों तैयार है? अब ये लड़त तो जन आंदोलन है और इसके सामने जितने भी गंदे आरोप खालिस्तानी पाकिस्तानी उन्होंने किए हैं, हम सब है हिंदुस्तानी। चलो एक नारा दे दे, न खालिस्तानी न पाकिस्तानी, हम है हिंदुस्तानी। न खालिस्तानी न पाकिस्तानी, हम है हिंदुस्तानी। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि चुनावी राजनीति में वो किसी मशीन से या मैकेनिज्म से वो जीत जाएंगे। और बंगाल से भी अगर ये ऐसी अपेक्षा करते हैं कि नंदीग्राम और सिंगूर जैसी जगह पे गंगा भागोन के सामने, कहीं साउथ 24 परगना में सेक्स टूरिज्म के सामने, कहीं एक एक नदी बचाने के लिए, कहीं खनिज कोयला बचाने के लिए, कहीं यहाँ टोलीगंज के गरीबों के घर बचाने के लिए बहुत सारी लड़त हुई है। सुंदरबंस के मछुआरों की हुई है और हमारे चाय बागान के मजदूरों की भी हुई है। एक एक लड़त ने अपनी हासिली कर ही ली है, लेकिन अहिंसक सत्याग्रहियों को एक आतंकवादी कहकर ये बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि इनका आतंक और प्रकार का है जो पूंजी और बाजार का है, और उस आतंक को रोकेंगे नहीं तो इन्होंने BSNL को बेच दिया है, BPCL को बेच रहे हैं, इंश्योरेंस को बेच रहे हैं, तो ये चाय बेचते बेचते देश बेच रहे हैं। क्या बंगाल भी बेचने के लिए बंगाल के मतदाता नागरिक तैयार है? क्या तैयार है? नहीं तैयार है तो दोनों हाथ उठा के बोलिए कि बंगाल बेचेंगे नहीं, बंगाल बेचेंगे, देश बेचेंगे। अगर बंगाल
बचेगा तो देश बचेगा। ये जा रहे हैं जहां कृषकों के आंदोलन हुए, वहां भी ये जाति और मजहब की बात लेकर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं सुवेंदु अधिकारी के द्वारा कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आपकी संख्या की ये गिनती है और इसके आधार पर मैं जीतूंगा। इसलिए साथियों हमको जाना है नंदीग्राम में, वहां सुल्तान की लड़ाई लड़ी, वहां राधा रानी खड़ी ने भी लड़ाई लड़ी। हिंदू और मुस्लिम नहीं होते हैं। और उसके बाद हम सब लोग मिलकर भूमि अधिकार आंदोलन हुआ, अनंता भी जुड़ गए और सभी लोग हम लोग 2013 का भूमि अधिग्रहण का कानून बदलकर नया कानून लाया। लेकिन मोदी जी जमीन हड़पना ही नहीं, जमीन का हस्तांतरण चाहते हैं। मोदी जी जल जंगल जमीन की परवाह नहीं करते। ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर वाले कर रहे हैं पर उनको कोई जलवायु परिवर्तन की खबर नहीं है। 23 मार्च को जब शहीद आजम को याद करेंगे तो शहीद आजम ने भी शोषण का विरोध किया था और प्रकृति को बचाने की बात हमारे तमाम मार्गदर्शक विचारवंतों ने की थी। आज 12 मार्च योगेंद्र जी ने कहा कि गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी, आज गुजरात से साबरमती आश्रम को उन्होंने कॉर्पोरेट के हाथ में दिया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर भी दे देंगे, ये शांति निकेतन भी दे देंगे। क्या बंगाल के लोग तैयार है? तो आजादी आंदोलन में, खिलाफत मूवमेंट में रविंद्रनाथ टैगोर जी की विकास की सही अवधारणा के साथ चलने वाले बंगाल के नागरिक, हमें विश्वास है कि जब ये 3 कानून तो रद्द करवाने ही है, लेकिन एक अलग सी जल जंगल जमीन बचाने की, प्रकृति बचाने की और राज्य के साथ साथ गांव का और बस्ती बस्ती का अधिकार, नियोजन का बचाने की, संवैधानिक अधिकार, समता, सादगी, स्वावलंबन और सर्वधर्म समभाव का मूल्य बचाने की जब चुनौती हमारे सामने है, जब देश के सार्वजनिक उद्योग और देश की प्राकृतिक संपदा हम मेहनत कशों की ताकत पर बचाने की आशा रखते हैं, तो आज संयुक्त किसान मोर्चा का ये आह्वान निश्चित रूप से आप लोग गली गली फैलाएंगे। मैं एक ही बात और कह के रुक जाती हूँ कि यहाँ भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी से हमारे ही क्षेत्र के कैलाश विजयवर्गीय जी। मैं केवल एक चित्र आपको दिखाती हूँ जो अच्छा प्रिंट नहीं लाया। IPS अधिकारी को जूते मारने वाले कैलाश विजयवर्गीय और उनका बेटा अन्य अधिकारियों को पीटकर जेल गया हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स पर हल्ला करने वाले, लैंड माफिया के नाम पर पहचाने जाने वाले। मैं तो कोई केसों का डिटेल नहीं दूंगी, आप ढूंढ लीजिए। लेकिन जब भ्रामक प्रचार करते हैं और ऐसे उनके नुमाइंदे होते हैं, तो अगर वो सत्ता में आएंगे बंगाल में तो कुछ भी बचेगा नहीं, जनतंत्र नहीं, संविधान नहीं और आम के अधिकार नहीं। और इसीलिए हम लोग आज संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जन आंदोलनों की राजनीति, अहिंसा की ही बात करने वाले, इन्होंने तो गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं को आज रोक के रखा है, केरल से चल रहे साइकिल वालों को कन्याकुमारी में रोक के रखा है, ये सभी को दिशा रवि को रोकते हैं, ये मनदीप पुनिया को रोकते हैं। आज भी कुछ किसान जेल में है। हम सब लोगों पर हिंसा के आरोप लगाए हैं, डकैती का आरोप लगाया है, हत्या की साजिश का आरोप लगाया है, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया है। तो साथियों, इनकी सच और झूठ समझने के लिए ये माध्यम काम नहीं आएंगे जिनमें कॉर्पोरेटीकरण घुसा है। ये कंपनीकरण शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, माध्यमों में भी है। और इसीलिए जो माध्यम करता आज हमारे सामने है, हम ऐलान करते हैं कि वो सच्चाई उजागर करे। दिन थोड़े हैं, हम सब लोग माध्यम बन जाए और दिल्ली के बॉर्डर पर ही नहीं, देश भर किसानों की उठी आवाज को आज बंगाल के गांव-गांव में किसान दूत स्वयं बनकर आप पहुंचेंगे, ये अपेक्षा और विश्वास रखते हैं। और इसीलिए आपको जिंदाबाद करते हैं। एक दिल में समा दीजिए एक बात कि कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? इस किसान मजदूर को बचाने के लिए जो नीरव मोदी और विजय मल्ल्या को बचाते हैं, उनको हजारों करोड़ की कर्ज मुक्ति देते हैं, लेकिन MSP देने के लिए जिनके पास वो कहते हैं स्वराज
आज अभियान के केस में सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे कुछ लाख करोड़ हाईवे और फ्लाईओवर के बदले, तुम्हारे घर आलीशान करने के बदले, वो लोकसभा की बिल्डिंग गिराकर नया लोकसभा संसद खड़ी करने के बदले में अगर आप किसान मजदूरों को दे देंगे तो हम मानेंगे और मान जाते, पर नहीं, आप जाति और मजहब के नाम पर आप महिलाओं पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार करवाकर आप क्या चाहते हैं? इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले, और हमको कहते हैं कि हम टुकड़े टुकड़े की गैंग है। नहीं, अब इतने सारे लोग एक है, एक होकर लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। खेती बचाओ, देश बचाओ, खेती बचाओ, खेती बचाओ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। समय नहीं है, पर 44 कानूनों में से 29 श्रमिकों के पक्ष के कानून भी उन्होंने जो वापस किए हैं, और 4 कोड यानी संविधा लाई है, उससे भी आम श्रमिकों के अधिकार, महिला श्रमिकों के अधिकार, रोजगार के पीछे पीछे यूनियन बना कर लेने का अधिकार भी छीन रहे हैं। तो साथियों, सब लोगों की एकता आज जरूरी है, इस पर आज बोलने का समय नहीं है। आप सब जानते हैं, बस समय कम है। आप आज से, आज रात से शुरू करो, आपके हाथ में जो माध्यम है उसका इस्तेमाल करो, अपने बस्ती बस्ती और गली गली में घूमो, जिले में पहुंचो, तो संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान निश्चित रूप से कामयाब होगा। जिंदाबाद। धन्यवाद मेधा जी। अब कॉमरेड अतुल अरजान अपने विचार रखेंगे। কার্ড নেই গেছে, কত দিনই হবে, অনেক 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। সম্মানিত মঞ্চ, আমার ইচ্ছে আছে কি আমি বাংলাতে কথা করি আপনার সঙ্গে, কিন্তু সাহস আসছে না। কথা করবার জন্য সাহস আছে, কিন্তু বক্তৃতা করবার সাহস নেই। কিন্তু 10-15 দিন এখানে থাকলে পরে এইদিকে ওইদিকে বন্ধুদের সঙ্গে যদি ঘোরা, এদিকে ওইদিকে মিটিং করবো, তো নিশ্চয়ই আমি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বাংলাতে বলতে পারি। আজ থেকে 5 বছর আগে আমি ঘুরেছিলাম মেদিনীপুর এলাকায়, 10 দিন ছিলাম কৃষকদের মধ্যে। সে সময় বক্তৃতা করছিলাম হিন্দিতে, আর বক্তৃতা করতে করতে কখন আমি সুইচ ওভার করে গেলাম বাংলাতে আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু ভালোই বলেছিলাম বাংলাতে। साथियों, आपने तमाम साथियों के विचारों को सुना। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी एंड कंपनी से बोलो कम और तोड़ो कम की फैक्ट्री से मैं कहना चाहता हूं कि लड़ाई आपको हारनी होगी बंगाल में, क्योंकि बंगाल के किसानों ने फैसला किया है कि आपको पराजित करना है। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं ना, क्या तमिलनाडु में आपका खाता खुलेगा? पुडुचेरी में आपके आदमी चुनकर जाएंगे? केरल में तो आप लौटते हुए दिखाई पड़ेंगे गधे की तरह। बचा है आसाम, आसाम भी संकट में है, और यहाँ आप नारा दे रहे हैं। पूरी देश की सरकार आ रही है, आ गई है। देश का घर मंत्री रोज टहल रहा है। गृह मंत्री का काम है कि राज्यों की हिफाजत करे, राज्यों को सचेत करे, मजबूत करे। लेकिन 2 महीने पहले ही अमित शाह यहाँ के कहते हैं कि बंगाल की सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना। क्या आज तक इससे पहले भी किसी देश के घर मंत्री ने इस तरह का भाषण किसी राज्य सरकार के संबंध में दिया? किसी भी सरकार के संबंध में देने का अधिकार घर मंत्री को नहीं है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जो फैसला लिया है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने जो फैसला लिया है, क्यों लिया, क्या वजह है, क्यों किसान आज खड़े हुए हैं? ये 105-7 दिन से ये बैठे हैं भूख हड़ताल पर। देश के लाखों लोग उनके समर्थन में 40 लाख 50 लाख रोज प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। मोदी जी, आपको समझ में नहीं आता? मोदी जी, आपकी सरकार किसी बस हादसे में कुछ लोग मर जाते हैं, आपकी सरकार और आप खुद चिट्ठी लिखते हैं, उनके परिवार को संवेदना प्रकट करते हैं, 5 लाख रुपया देते हैं। लेकिन 280 हमारे किसान भाई शहादत दे दिए,
एक को भी चिट्ठी लिखी आपने? उनके परिवार को आपने कुछ पैसा दिया? नहीं दिया। आपने 26 जनवरी को ITO में दिल्ली में नवरीत को मार दिया। आपकी पुलिस ने मार दिया, आपकी नीतियों ने मार दिया। 26 जनवरी को मारा गया नवरीत सिंह। 29 को रामपुर उत्तर प्रदेश के उसके गांव में 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी के लिए सारे गांव के लोगों ने न्योता रखा था। गांव भर के लोग, आसपास के 10 गांव के लोग खाना खाने आने वाले थे। मोदी जी, आपने उसको मार दिया। आज हजारों लोग नवरीत के घर पर जाते हैं। उसकी जवान बीवी 23 साल की, उसको सांत्वना देने जाते हैं। वो पिछवाड़े से दरवाजे के पीछे से हाथ ऐसे छोड़ती है। उसके हाथ में कंगन नहीं है, उसके पैर में बिछिया नहीं है, उसके पैर में बांजर नहीं है। वो सुबकती हुई सबको हाथ जोड़ करके अपनी तरफ से जो लोग उसके शोक संतप्त में परिवार के साथ हाथ जोड़ते हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। लेकिन जालिम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुमने न तो उसको चिट्ठी लिखी, रुपया देने की बात, तुमसे बड़ा जालिम हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जो तुमने किया। मैं फिर कहना चाहता हूं, बंगाल के लोगों से कहना चाहता हूं, हर सभा में कहता हूं, ये तो धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। ये धरती तो राजेंद्र लाहिड़ी की धरती है। ये धरती तो मुजफ्फरपुर में शहादत देने वाले उस 18 साल के 16 साल के नौजवान की है। ये धरती तो मास्टर सूर्य सेन की है। ये धरती तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। ये धरती तो कल्पना दत्त की है। ये धरती किसकी नहीं है? और ये धरती में भारत के स्वाधीनता आंदोलन की तस्वीर बनाई थी। ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों का है। ये देश सबका है। और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो गीत, इंडियन नेशनल आर्मी का गीत, हम सबका गीत है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। ये देश के किसान उसी रास्ते पर निकले हैं। इस जिंदगी को, इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं। इस अन्नदाता को बचाने के लिए निकले हैं। ये देश की लड़ाई है। इसलिए हम कहते हैं, खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती गांव बचेगा तो किसान बचेगा, किसान बचेगा तो देश बचेगा। इसलिए खेती बचाओ, गांव बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ। आज के दौर की स्वाधीनता संग्राम यही है जो किसानों ने ठाना है। मैं अधिक कुछ न कहते हुए आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि चुनाव तो आते और जाते रहेंगे। इस जालिम हुक्मरान को, इस जालिम आदमी को बदलने के लिए, जो हमको समाज को बांटता है, इस बंगाल की धरती 200 पार करे जाबो আমরা, 200 पार, 294 में 200 আপনি আনছেন, তো বাকিরা কোথায় যাবে? হ্যাঁ, কোথায় যাবে? आप सब तय करके समझ लो कि ये पार्टी 20 का आंकड़ा न पार करने जाए। संयुक्त मोर्चा के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संयुक्त रूप से फैसला लेकर के इसे किनारे फेंक दो, इसे किनारे फेंक दो, इसे डाल दो किनारे। देश बेच रहा है, देश तबाह कर रहा है। ये कहता था, आज गौर करिए ना, 100 रुपए के पार हो गया पेट्रोल। अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले सरसों का तेल 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए बिक रहा था पर केजी। आज कितने का बिक रहा है? 100, 150 रुपए का। महंगाई घटी की बढ़ी। जब मनमोहन सिंह के जमाने में 2 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ गया था 2007 में, तो क्या कहे? निकाल के देखिए यूट्यूब पर मोदी जी, जो सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, जो सरकार महंगाई बढ़ाती है, उस सरकार को दिल्ली पर रहने का अधिकार नहीं। और मैं ये कहता हूं कि जो सरकार
100 रुपए के पार पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, उसे दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं, उसे खोद करके जमीन में गाड़ देने की जरूरत है। वक्त का यही तकाजा, वक्त का यही तकाजा। झूठ और फरेब की बुनियाद पर बहुत दिन सरकार चली। आज हम सब आपके साथ ये कहने आए हैं कि दिल्ली का आंदोलन और देश के किसानों का आंदोलन कमजोर नहीं होगा। गांव-गांव में मशाल जलेगी। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये देश में दौलत की इतनी बड़ी लूट है, इस लूट के खिलाफ लड़ना होगा। ये हल जो किसानों का हल है, यही हल इस देश की समस्याओं का हल निकालेगा। अगर सब लोग मिल करके काम करेंगे, इस देश में 65 करोड़ नौजवानों को काम कौन सा फैक्ट्री देगा? इस देश में अगर काम देगा तो ये खेत और किसान और ये खलिहान देश के नौजवानों को, युवक और युवतियों को काम देंगे। यही मुझे आपसे कहना है। अधिक न कहते हुए मैं आपसे एक बात कहूं, आजादी की लड़ाई में बाबा सोहन सिंह भखना जो गदर पार्टी के अध्यक्ष थे और भवानी सेन ने एक साथ नारा दिया था। यहाँ क्या नारा था मालूम है? नारा था, वो नारा था, धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों की, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होए। इसलिए आज ये नारा फिर मैं देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं कहूँगा, धरती ये अडानी अंबानी और देश के पूंजीपति देश की जमीन को ले लेना चाहते हैं। जिससे मैं नारा दे रहा हूँ, धरती नहीं धनवानों की, आपकी तरफ से आवाज आए है मजदूर किसानों की, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक हो। धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों की, धरती नहीं धनवानों की, धरती नहीं धनवानों की, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक हुए, जो धरती को जोते बोए, जो धरती को जोते बोए। किसानों की एक विप्लवी एकता नए समाज को बनाएगी। और मैं आखिर में एक शेर कह के अपनी बात खत्म करता हूं, किसान और मजदूर की तरफ से। प्यासी थी जमीन, सारा लहू पिला दिया। किसानों मजदूरों ने, प्यासी थी जमीन, सारा लहू पिला दिया, और मुझ पर वतन का कर्ज था, मैंने निभा दिया। और मैंने उससे कहा, जलाने को चिराग, उसने इसी बहाने मेरा घर जला दिया। ये घर जलाने वाली ताकतें हैं, उनको किनारे करो। और फिर आपसे कहूंगा, ये जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ लड़िए और जुल्म का सीना चीर दीजिए। और जुल्म का सीना अगर आप चीरेंगे तो आप देखेंगे कि नया सवेरा झांक रहा है। जय जय। धन्यवाद कॉमरेड रसूल जान। अब अपनी बात रखेंगे कॉमरेड राजाराम सिंह। हेलो, सम्मानित मंच, देश के किसान आंदोलन का संचालन कर रहे दिल्ली से और देश के कोने कोने से आए हुए नेतागण और मजदूर किसान भाइयों, कलकत्ता के नागरिकों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आपका अभिनंदन। हम सिर्फ बंगाल में 3 कानूनों की वापसी के लिए वोट हो ये कहने नहीं आए। ये 3 कानून तो वापस होने ही चाहिए। ये कानून केवल किसानों को प्रभावित करने वाले नहीं हैं। अगर कंपनियों को ठेका पर खेती दी जाएगी तो बंगाल जहां बड़े पैमाने पर बटाईदार हैं, उन्हें खेत कहां से मिलेगा? अगर सरकारी खरीद नहीं होगी तो जन वितरण प्रणाली से बीपीएल फैमिलीज को अनाज कहां से मिलेंगे? स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में मिलने वाला गरीब छात्रों को भोजन कहां से मिलेगा? आंगनबाड़ी में जाने वाला पोषाहार कहां से मिलेगा? ये सवाल है। शहर का उपभोक्ता वर्ग जो भी भोजन करता है, अंबानी अडानी का चावल और गेहूं
30 रुपये और 25 रुपये किलो नहीं मिलेगा जो किसान का मिलता है, वो 300 और 350 रुपये किलो मिलेगा। इसी बंगाल के अकाल के बाद जब हम आजाद हुए थे, लाखों की मौतें हुई थी, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम बना था जिसमें आलू, प्याज, तिलहन, दलहन आवश्यक वस्तु माना गया था। इसको हटा दिया गया उस लिस्ट से। अब जब हमारे हाथ में आलू होगा, वर्धमान के किसान सुन लें, तो वो 2 रुपये और 5 रुपये किलो खरीदा जाएगा। और जब अडानी के कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में लाखों टन बंद हो जाएगा, तो 100 रुपये और 125 रुपये वो मिलेगा आलू और प्याज, जो कभी कभी जाता है। वेतन कमते जा रहा है और भोजन का खर्च बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इन कानूनों को हटाया जाना हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के हित में है, केवल किसान का सवाल नहीं है। मजदूरों का सवाल है, शहरी उपभोक्ताओं का सवाल है, किसानों का सवाल है, आम नागरिकों का सवाल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल यही सवाल हम बंगाल के किसानों से पूछने के लिए, कहने के लिए नहीं आए हैं। हम यह कहने के लिए आए हैं कि बंगाल के किसानों, पूछो नरेंद्र मोदी से, जो हमारे सीने पर और हमारे दिमाग में कीलें ठोकी गई हैं हिंदुस्तान के किसानों के माथे में, इसका जवाब क्या है, ये सवाल पूछना है। जो किसान आंदोलन के दरमियान जब पूरा देश पंजाब को सैल्यूट कर रहा था, उनके साहस का, उनकी बहादुरी का, उनके त्याग का, उनकी सेवा का, ठंड से लेके बरसात से लेके पूरे दिनों में आंदोलन में लाखों लाख रुपया खर्च करके आंदोलन को टिकाए रखने के जज्बे का, किसान थे मोर्चे पर। लेकिन पंजाब का हर तबका का आदमी पहुंचा बॉर्डर पर। हम भी किसान हैं, हम भी किसान के साथ हैं। यह जो जज्बा था, पूरा देश सलाम कर रहा था। उस समय नरेंद्र मोदी ने साजिश की, बदनाम करने की। बड़ी हिंदू मुसलमान करते रहते हैं हर सवाल पर, लेकिन सिखों के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। इन्होंने ही षड्यंत्र करके झंडा फहराया, पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, हमारे नेताओं को अलगाव में डालने की कोशिश की। बंगाल को ये सवाल पूछना है। बंगाल के जागरूक नागरिकों को, एक एक किसानों को बंगाल पर बहुत नाज है। यह रविंद्रनाथ का बंगाल है, यह सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, विद्वानों का बंगाल है। देश की हर गतिविधि पर उसकी नजर होती है। जो डेमोक्रेसी को छीनने की कोशिश की गई है, देश में फासिज्म थोपने की कोशिश की गई है, उन सारे सवालों का जवाब भाजपा से मांगना है। और किसानों के खिलाफ इन्होंने जो युद्ध छेड़ रखा है, आज बॉर्डर का मतलब भारत पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है। आज बॉर्डर का मतलब भारत चीन बॉर्डर नहीं है। आज बॉर्डर का मतलब है दिल्ली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, सिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। खाइयां बांग्लादेश के बॉर्डर पर नहीं खोदी जा रही हैं, खोदी जा रही है सिंगू बॉर्डर पर। कीले ठोकी जा रही हैं, तार की जालियां बिछाई जा रही हैं। दिल्ली हमारी नहीं है क्या? देश के किसानों की दिल्ली नहीं है, बंगाल के लोगों की दिल्ली नहीं है। हम दिल्ली में नहीं जा सकते, ये सवाल है और ये सवाल आपको पूछना है और उसका एक एक सवाल का जवाब अपने वोटों के जरिए यहाँ देना है। और हम इसी उम्मीद से आए हैं, देश के किसान नेता इसी उम्मीद से आए हैं कि बंगाल की जागरूक जनता
जरूर इसका एक सकारात्मक जवाब देगी। देश में लोकतंत्र के झंडे को बुलंद करेगी। जनगण मन गाने वाला प्रदेश यह है, यहाँ से रचना उसकी हुई है लोकतंत्र की। उस लोकतंत्र के हिफाजत करने वाले बंगाल को सैल्यूट करते हुए मैं कहना चाहूंगा, इस बंगाल के चुनाव से फिर एक संदेश निकलना चाहिए। पंजाब हरियाणा के किसानों, देश के किसानों, संघर्ष करो, बंगाल भी तुम्हारे साथ है, ये नारा निकलना चाहिए और एक एक वोट से इसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सब बारिश पे এবার বক্তব্য রাখবেন কমরেড সত্যবান। আবার কমে मंच पर आके संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे नेतागण और इस मैदान में जमा बुजुर्गों, माँ बहनों, नौजवान साथियों, काफी देर से आप संघर्षरत किसानों का संदेश बंगाल के लिए सुन रहे हैं। अब तक जो बात रखी गई है, इससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार जो 3 काले कानून और बिजली बिल लेकर आई है, वो सिर्फ किसानों ही नहीं, आम जनता के खिलाफ है। वो किसानों की उपज को लूटना चाहते हैं, किसानों की धरती जमीन को भी हड़पना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन जो जानकार लोग जानते हैं, भुक्तभोगी किसान जानते हैं, 5 जून के बाद जो मक्की की फसल आई, 1950 मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार की घोषणा थी। क्या रेट मिले? कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा में तो एमएसपी मिलती है, हरियाणा और पंजाब में 800 और 1000 रुपया से ज्यादा दाम नहीं मिले, मध्य प्रदेश में नहीं मिले, बिहार में नहीं मिले, कहीं भी देश में घोषित रेट से आधे दाम भी नहीं मिले। मोदी सरकार कह रही है कि हम ये जो नए कानून इसलिए लाए हैं कि छोटे किसानों को हिफाजत नहीं होती थी, हम छोटे किसानों के हित में लाए। नहीं भाइयों, अगर ये कानून लागू होते हैं तो बड़ा किसान हो सकता है 10 साल झेल जाए, लेकिन छोटा किसान, बीच का किसान 2 साल के भीतर साफ हो जाएगा, उसके हाथ में जमीन नहीं रहेगी, खेती नहीं रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आती है, तजुर्बा है, पंजाब का तजुर्बा है, हरियाणा का है, मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है, कर्नाटक का है, जहां भी हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गई है, किसान तबाह हुए हैं, अफ्रीका में, अमेरिका में, कहीं भी, ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियों की सेवा के लिए है। मोदी सरकार इनको क्यों लाई है? कोरोना लॉकडाउन में ही आपने देखा, हिंदुस्तान का एक सेठ अंबानी एशिया का सबसे बड़ा सेठ हो गया, दुनिया के 10 बड़े सेठों में से है। मोदी चाहता है कि ये अंबानी और अडानी अमेरिका के सेठों से भी बड़े ताकत और पूंजी के मालिक हो जाए, हमारे खेतों को लूटकर, हमारी फसल को लूटकर, इंडस्ट्री को तो पहले ही लूट रहे हैं। इन्होंने करोड़ों लोगों को बेरोजगार बिठा दिया है, शिक्षा को छीन लिया है, स्वास्थ्य सेवाओं को छीन लिया है। इसलिए किसानों ने जो ये जंग छेड़ी है, जो आंदोलन छेड़े हैं, पंजाब के किसानों ने जिस तरह से आगे बढ़ के दिल्ली चलो का जवाब दिया, बॉर्डरों तक आगे हरियाणा सरकार ने जो जुल्म ढाए थे बीच में, उनका जवाब देते हुए हरियाणा के किसान आगे, साथ में उत्तराखंड के किसान आगे, यूपी के आगे, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, आज ये सारा हिंदुस्तान का आंदोलन किसी तरह से लोटवा ने इसके खालिस्तानी कहा, लेकिन आखिर मजबूर होकर 1 तारीख को दिसंबर को
किसानों के साथ बात करनी पड़ी। ये मोदी सरकार की पहली हार थी। ये मोदी सरकार की हार थी कि 26 जनवरी को उसने जो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र का जवाब किसानों ने दिया। 26 जनवरी के बाद भी बॉर्डरों पर हमला किया। तिरंगा झंडा की आड़ में आरएसएस, बजरंग दल लोग हमला करने के लिए आए। सिर्फ वही नहीं, मुजफ्फरपुर में हमारा धरना ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का खुदीराम बोस समाज के सामने चल रहा था। जब धरना का समाप्ति का टाइम हुआ, 5-4 बुजुर्ग रह गए थे, उन पर विश्व हिंदू परिषद वालों ने हमला किया। अभी 3 मार्च को ग्वालियर के नजदीक गुणा में आरोन के अंदर हमारे संगठन ने महापंचायत बुलाई थी। जब तक किसान नहीं आए थे, आरएसएस के गुंडे काला झंडा लेकर आ गए, लेकिन किसान आने पर उनको भागना पड़ा। देश के कोने कोने में बीजेपी ने जो अपराध किए हैं, मेरा कहना है कि 26 जनवरी से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिर्फ चुनाव में नहीं, मैं इस मंच से कह रहा हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अगर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, अगर बंगाल के किसानों की, बंगाल के आम आदमी की मन की बात को अगर मैं समझता हूं, बंगाल में बीजेपी पूरी तरह से पिटेगी और बंगाल की जनता एक सही निर्णय लेगी। दोस्तों, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, ये 2021 आज है, इसकी पहला दशक पूरा हिंदुस्तान के किसानों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। बंगाल के लोगों ने उसमें अगुवाई दी, हिंदुस्तान के किसानों को रास्ता दिखाया। ये दूसरी दशक है, इसमें 3 काले कानूनों में हमारे पंजाब के, हरियाणा के साथियों ने अगुवाई जो की है, AIKCC संयुक्त किसान मोर्चा ने अगुवाई की है। लेकिन इसके भीतर में एक अनूठी बात है, ये आंदोलन सब बड़ा है, दुनिया का, हिंदुस्तान का बड़ा आंदोलन है। ये तो है ही है उसकी खूबी, लेकिन इससे बड़ी एक और खूबी है। आज 500 संगठन अगर हम इस मंच के ऊपर हैं, ये हम नेताओं का गुण नहीं है, मुझे माफ करेंगे मेरे साथी, ये गुण इस आंदोलन का है। किसानों ने हम 500 नेताओं को, 500 संगठनों को एक जगह बांध दिया है और हम एक साथ लड़ाई के मैदान में। और जब तक ये लड़ाई जीत नहीं ली जाएगी, हम में से कोई हटने वाला नहीं है। ये इस आंदोलन की जीत है। इस आंदोलन की नकल पे जर्मनी में लोग ट्रैक्टर लेकर आ गए, अपनी राजधानी में घुस गए। सारी दुनिया इस आंदोलन की तरफ देख रही है। और इस आंदोलन की एक बड़ी देन वो है, अब तक जितने आंदोलन हुए हैं उसके निशाने पर रूलिंग पार्टी रहती रही है। जेपी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, उसके निशाने पर उस वक्त कांग्रेस रूलिंग पार्टी। लेकिन आज इस आंदोलन के निशाने पर हर वो पार्टी है जो अंबानी और अडानी की सेवा में रहेगी। इसके निशाने पर अंबानी और अडानी है। ख्याल कीजिएगा 20वीं सदी की दूसरे दशक में सारी दुनिया में उथल पुथल हुई थी। दुनिया में किसान मजदूरों ने एक नई जागृति, नया रास्ता दुनिया के लिए क्रांति का खोला। ये तीसरा दशक जो 21 का है, ये हिंदुस्तान में किसानों के आंदोलन देश के तमाम शोषित पीड़ित आंदोलन को रास्ता दिखाएगा। ये बहुत बड़े एक नए करवट बदलने वाला हिंदुस्तान को रास्ता दिखाएगा। ये उम्मीद है। फिर भी मैं अपील करता हूँ कि चुनाव में आप जो कॉर्पोरेटों की सेवादार पार्टियां है, जिसका शिरोमणि है बीजेपी, उसको मुकम्मल शिकस्त दे, उसको हराए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको इसकी औकात बता दे। जो 2 से शुरू हुई थी, 287 पर गई थी, उसको 2 के ऊपर पहुंचाना है। उसको हिंदुस्तान की राजनीति से खारिज करना। इतना ही कह के, और आपने जो इस किसान महापंचायत को जो आदर और मान दिया है, आप जमा हुए हैं, मैं आप सभी को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।
আচ্ছা আজকে সবার অন্তিম বক্তা ডক্টর সুনীলম মধ্যপ্রদেশ থেকে এসছেন। দীর্ঘ 30 বছর কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছে। আপনারা মন দিয়ে ওনার কথা শুনুন। ডক্টর সুনীলম। सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सब अनाज खाते हो, सब्जी खाते हो, दूध पीते हो और वो सब किसान पैदा करता है। तो किसान का कर्ज उतारने के लिए आप भाजपा को हराने का काम करो, जिसने 280 किसानों को शहीद करने का काम किया है। ये मैं आपसे पहली अपील करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कॉर्पोरेट की सरकार है, इसने अकेले आप लोगों को लूट करके केवल और केवल डीजल और पेट्रोल से 24 लाख करोड़ रुपया कमाया है। 17 अगस्त 14 लाख करोड़ रुपया किसानों के कर्ज पे अगर खर्च किया होता तो पूरा देश का किसान कर्जा मुक्त हो जाता। यही मांग ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति KCC ने की थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, वो कानून नहीं बनाया और कोरोना काल के अंदर इस देश की जनता को लूटा। और किसको मुनाफा दिया? एक तरफ देश के 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और दूसरी तरफ अडानी अंबानी ने 3 लाख करोड़ रुपया कमाने का काम किया। ये जो मोदानी मॉडल है, मतलब मोदी का अडानी के लिए बनाया गया जो मॉडल है, इस मॉडल को परास्त करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो बंगाल की जनता कर सकती है। और आपकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी है। ये भी कहना चाहता हूँ, आप याद करो 23 जून 1757 का दिन सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का, उसको क्लाइव ने हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे हराने का काम किया था। बंगाल के माध्यम से पूरे देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो गई और वो राज चला 1757 से लेके 15 अगस्त 1947 तक। और इसीलिए विशेष तौर पर बंगाल के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो जो अब फिर से प्रयास है अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हैं पूरे देश को, वो ऐसा न होने दे। ऐसा सबक सिखाए कि हम दो हमारे दो, ये फिर से बंगाल के अंदर हिंसा करना भूल जाए। आखिरी बात साथियों आपसे कहना चाहता हूं, जहां पर मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, वहां पर धक्का दे करके या किस किस तरीके से अगर उनके ऊपर ही अगर चोट पहुंचाई जा सकती है, तो फिर भाजपा का जब राज आ जाएगा। तो मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, मैंने भाजपा का राज देखा है। ये जो KCC बनी है मंदसौर के अंदर, जो भाजपा सरकार का गोली चालन हुआ और 6 किसान शहीद हुए, उसके बाद में ये 250 किसान संगठनों का ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी। और उसके बाद 2 दिन का ये जो आंदोलन था दिल्ली का, उसके लिए संयुक्त संघर्ष मोर्चे की नींव यहाँ जो नेता बैठे हैं इन लोगों ने डालने का काम किया था। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूँ, कलकत्ता के लोगों और बंगाल के लोगों, आप अगर नहीं थे, आप अगर 1907 में तो नहीं थे पगड़ी समाज जट्टा के आंदोलन में, 1917 के चंपारण के आंदोलन में गांधी जी के नहीं थे, 1942 के आंदोलन में आप नहीं थे, आप में से शायद कुछ लोग 1974 के आंदोलन में रहे होंगे। लेकिन अब ये जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, ये ऐसा आंदोलन है कि किसानों का तीर्थ बन गया है। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल और शाहजहांपुर बॉर्डर। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, चुनाव नाम निपटा लीजिए और फिर आ जाइए आप भी बॉर्डर के ऊपर आइए। और जिसने बॉर्डर नहीं देखा उसने किसान आंदोलन का कुछ नहीं देखा। ये कहना चाहता हूँ, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों को जो आज तक नहीं गए हैं, उनको संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो दिल्ली आए, बॉर्डर के ऊपर अपने अपने जिले के अंदर भी लड़े। और भाजपा को हराने के लिए हमारा एक ही नारा है, भाजपा हराओ और कॉर्पोरेट को सबक सिखाओ। और मुझे उम्मीद है
कि आप लोग सबक सिखाएंगे और जो फैसला आएगा उसको पूरे देश की जनता सेलिब्रेट करने का काम जरूर करेगी। इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनील के। আজকে এই ঐতিহাসিক পশ্চিমবঙ্গ কৃষক মজুর মাস পঞ্চায়েত সমাপ্তি ঘোষণা করছি। প্রোগ্রামটা খালি বলে দিই, আগামীকাল বেলা 11টায় মেয়র রোডে এরকম আরেকটি কৃষক পঞ্চায়েত হবে। আগামীকাল বেলা 4টে নন্দীগ্রাম কৃষক মহাপঞ্চায়েত হবে। ভবানীপুরে বেলা 4টে থেকে ভবানীপুর কৃষক জনসভা হবে। রবিবার 14 তারিখ সকাল 11টায় সিঙ্গুর কৃষক মহাপঞ্চায়েত হবে এবং বিকেল 4টে আসানসোল কৃষক মহাপঞ্চায়েত হবে। তাহলে আগামীকাল পরশু মিলিয়ে 5টা কৃষক মহাপঞ্চায়েত জনসভা আছে। আপনারা খবরটা ছড়িয়ে দিন। আজকের এই সভার সাফল্যের জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃষক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে হারানোর জন্য এসে গেছে, সভা চলছে, আপনারা সকলে সেখানে যোগ দিয়েছেন। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি।